ہم کسی نئے نظام کی بات نہیں کر رہے. میں گزارش کرتا ہوں, کسی نئے نظام کی بات نہیں کر رہے, ہم اسی نظام کی بات کر رہے ہیں, ہم آئین کی بات کر رہے ہیں کہ حل اس آئین کے اندر ہی ہیں. اگر ہم اس کے اندر رہ کر عوام کے مسائل کو حل کر سکیں, یہی مقصد ہے. پارلیمان کے بے مزے نہیں ہوتے, پارلیمان میں عوام کے مسائل کی بات ہونی چاہیے. ہم ان ناکامیوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ آج یہ پارلیمان مفلوج ہیں, یہاں پر عوام کے مسائل کی بات نہیں ہوتی, یہاں پر اسمبلیوں سے سیاست کھیلی جاتی ہے. یہ آپ کی اسمبلی خالی پڑی ہے, آج تحلیل ہو چکی ہے. کیا وہاں پر فاٹا کی بات ہوئی 4 سال میں؟ کیا جو فیصلے, ہم سب اس میں شامل ہیں, ہم کوئی بھی اسے بری عظمہ نہیں ہے. میں سب سے پہلے اپنے آپ کو مجرم سمجھتا ہوں. آج ہمیں عوام کی تکلیف کی بات کرنی ہے اور کرنی پڑے گی, یہی ہم پر لازم ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ آج سب کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے. ہمیں وہ احساس نظر نہیں آتا. ہمیں ملک کی مشکلات پر وہ تکلیف نظر نہیں آتی سیاسی نظام کے اندر جو ہونی چاہیے. آج بھی ہم سیاست کی بات کرتے ہیں, آج بھی ہم مفاد کی بات کرتے ہیں. تو ہمیں کم از کم ہم پر یہ لازم ہے کہ یہ باتیں عوام کے سامنے رکھیں, جگائیں اس سیاسی نظام کو. آج ہم اور آپ بیٹھے ہیں نا, آپ بھی سوال کر رہے ہیں, ہماری بات بھی سن رہے ہیں, عوام بھی سن رہے ہیں. تو ہمارا کام ہے اس نظام کو جگانا, اس کا حل تلاش کرنا. ہم یہاں انقلاب کی بات نہیں کر رہے, ہم بات کر رہے ہیں کہ اسی نظام, اسی آئین کے اندر رہ کر ہمیں ملک کے مسائل کا حل ڈھونڈنا ہے. اگر کوئی کمی ہے, اگر آئین میں کمی ہے, کسی نئے سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے, تو اس پر بھی بات ہو. یہ جو سٹیٹس کو ہے یہ آپ کو مسائل کا حل نہیں دے گا. آپ ملک کے جس خطے میں جائیں, ہم 2 صوبوں میں گئے ہیں, عوام نے جن تحفظات کا اظہار کیا ہے وہ کوئی ایسے مسائل نہیں جو حل نہیں ہو سکتے تھے. حل کیوں نہیں ہوئے, یہ ہمارا سوال ہے. بھائی صاحب, آپ چونکہ مسلم لیگ نون کا حصہ ہیں, یہ جو آپ جگانے کی بات کر رہے ہیں, پارٹی کے اندر آپ نے کس کس کو جگایا ہے اور کون کون جاگ رہا ہے, کون سو رہا ہے, اور نواز شریف صاحب کب آئیں گے پارٹی کو لیڈ کرنے؟ مریم صاحبہ پہنچ رہی ہیں آج, اس کے بارے میں دیکھیے ہم اپنی جماعت کے اندر بھی بات کرتے ہیں. جماعت جی اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہی ہے, کوکر صاحب بیٹھے ہیں, موتی صاحب بیٹھے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو فورم چاہیے تھا بات کرنے کے لیے. ایک غیر جانبدار نان پارٹیزن فورم چاہیے تھا جہاں سب بیٹھ کر مسائل کی بات. آپ کی پارٹی کے اندر آپ کی بات نہیں سنی جا رہی. میرے بھائی آپ میری بات سمجھے نہیں ہے نا. پھر میری پارٹی کی بات کروں گا جو میں مشاورت ہوگی. ہم کہہ رہے ہیں کہ ملک کی بات کون کرے گا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آج ملک کی بات کریں ایسے فورم پر جہاں سب موجود ہوں, سیاسی نظام کا سب حصہ ہیں. آج کوئی ایک جماعت جو ہے وہ ملک کے مسائل حل نہیں کر سکتی. یہ آپ کو نظر آ گیا, سب نے حکومت کر لی ہے. آج جب تک اکٹھے نہیں بیٹھیں گے, ایک دوسرے کو کہ مسائل کو سمجھیں گے نہیں, معاملات کو نہیں سمجھیں گے, سیاست کو اگر دشمنی سمجھیں گے تو پھر معاملہ آگے نہیں چلے گا. جی نواز شریف صاحب کو ہم بھول جاتے ہیں. میں پھر ذکر کر دوں گا, اس ملک کے سپریم کورٹ نے ان کی حکومت توڑی, تا احیات نااہل کیا, سیاست سے علیحدہ کیا, سیاسی عہدوں سے علیحدہ کیا. وہ علاج کے لیے گئے تھے, علاج کروا کر آ جائیں گے, یہ فیصلہ ان کے اور ان کے ڈاکٹروں کا ہے. لیکن کچھ ذمہ داریاں یہاں بھی ہیں کہ جس نظام نے ان پر یہ اور 2 دفعہ کنوکشن کرائیں نیب کی عدالتوں سے, دونوں مشکوک ہیں. دونوں جو کنوکشنز ہیں وہ کسی کو دکھا دیں, کسی وکیل کو دکھا دیں, وہ آپ کو اس کی حقیقت بتا دے گا. تو آج نظام کی ذمہ داری ہے کہ اس معاملے کو درست کرے. میں جب نظام کی ناکامی کہتا ہوں, یہ سب چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. ہم یہ کھیل نہیں کھیل سکتے. 2017 میں ایک چلتی ہوئی حکومت اس ملک میں توڑی گئی. کس بات پر کہ تم نے جب ویزا لیا تھا تم نے بیٹے کی کمپنی سے جو ڈائریکٹر فیس ہوتی تھی وہ نہیں لی تھی, وہ تمہارا ساسا بن گئی, تم نے ہمیں بتائی نہیں. اس پر ملک کی حکومتیں نہیں ٹوٹا کرتی.
अगर ये सियासी जमात भी नहीं है, प्रेशर ग्रुप नहीं है, तो फिर आप डिसीजन मेकिंग पर असरअंदाज कैसे होंगे? इसके साथ साथ वो आपको असर नजर आएगा। इसके साथ साथ कुछ लोग, जब हम वहाँ से आ रहे थे तो कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि चूंकि एस्टेब्लिशमेंट आइंदा इलेक्शन नहीं कराना चाहती, टेक्नोक्रेट सेटअप ला रहे हैं, तो ये इसकी भी एक रिहर्सल है, तो इसमें कितने ये हम हर चीज़ में कॉन्स्पिरेसी देखते हैं। मैं अल्लाह के करम से ये आपके सामने वसूख से कह सकता हूँ, ज़िंदगी में कभी एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं की है। जो मेरे सरकारी ओहदे का तकाजा था उस हद तक की है। इस्टेब्लिशमेंट अगर आइन के दायरे के अंदर रहेगी तो सर आंखों पर है, जब वो आइन से बाहर जाती है तो मुल्क में मसाइल पैदा होते हैं। वसी साहब ये बताएं कि आप तमाम जो है ना सियासी पार्टियों से हम सिर्फ ये लोग नहीं हैं, और बहुत से लोग हैं जो शायद सियासी जमातों में नहीं भी हैं। हमारे सामने जो आप बैठे हैं तमाम सियासी पार्टियों से वापस जी, उन सियासी पार्टियों से जो यहाँ हुक्मरान नहीं है, ठीक है, उन्होंने दूर किया है, और अभी आप उन पार्टियों में रहते हुए उस निज़ाम पे मतलब वो कर रहे हैं, निज़ाम ठीक नहीं है, तो हम कैसे आप पे ट्रस्ट करें? आप उसी निज़ाम का हिस्सा होते हुए फिर एक नई निज़ाम की बात करते हैं, या तो आप उन पार्टियों को छोड़ दें, आप कहें कि नहीं वो पार्टियां नाकाम हो गई, हम कोई नई वो लांच करें, या फिर उन पार्टियों का हिस्सा रहते हुए हम कैसे ट्रस्ट करें? मतलब वो जो भी पार्टी, वो पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, वो कोई भी पार्टी हो, आप उनका हिस्सा भी है। जी खोकर साहब जवाब देंगे। जी, मैं इसमें सिर्फ आपके एक सेकंड, जी मैं सिर्फ इसका मुख्तसरन आपके सवाल का जवाब दे दूं कि मैं आपके सामने एक एग्जांपल बैठा हूं कि हमारे मुल्क में इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर भी जो डिबेट की जो गुंजाइश है वो किस हद तक ख़त्म हो चुकी है। अगर इंसान उन्हीं बुनियादी प्रिंसिपल्स के ऊपर किसी के साथ अगर कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है जिसको इंसान समझता है कि भले उसका मेरी जमात से तल्लुक़ नहीं है और उसके ऊपर अपनी राय का इजहार करता है, तो उसके नतीजे में फिर उससे इस्तीफ़ा भी मांग लिया जाता है। तो सियासी जमातों की जो इस वक्त मुल्क के अंदर हालत हो गई है, घुटन का निज़ाम है, वहाँ पर कोई डिबेट की गुंजाइश नहीं है, वहाँ पर खुशामदी एक माहौल है, और ये जो आजकल का जो सारा ये सिलसिला चल रहा है, इसमें आप पोलराइजेशन देखें कि हमारे माशरे में कितनी बढ़ गई है। ये पोलराइजेशन भी तो आखिर किसी ने दूर करनी है, और रास्ता सियासतदानों ने ही निकालना है, और सियासतदान इस वक्त आपस में बैठ नहीं पा रहे, रास्ता नहीं निकाल पा रहे। तो इवेंचुअली अगर हम इस तरह रास्ता नहीं निकाल पाएंगे, लोगों के इश्यूज के ऊपर वापस नहीं आएंगे, तो सियासत किसी साने का भी शिकार हो सकती है। ये भी ज़हन में रखेंगे। जो दो सूबे हैं खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब, उसमें तो वैसे भी बिल्कुल कोई बैठने को तैयार नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं कि जो डेट दी गई है, जो टाइम दिया गया, इसमें इंतखाबात हो जाएंगे। इस बात पर सियासतदान मुत्तफिक हो जाएंगे कि नहीं? इंतखाबात होते हुए देख रहे हैं कि सियासतदान मुत्तफिक हो या ना हो, मैं चाहूँ या ना चाहूँ, आप चाहें या ना चाहें, इस मुल्क का आइन के कुछ तकाजे हैं, और वो ये कहता है कि असम्बलियाँ तहलील होंगी तो 90 दिन में इलेक्शन होंगी, अगर बाई इलेक्शन 60 दिन में होगा। इसकी और इलेक्शन कमीशन को आइन जिम्मेदारी देता है कि तुमने ये इलेक्शन करवाने हैं, इसलिए इसमें इब्हाम नहीं होना चाहिए। अब्बासी साहब ये बताएं कि जिस मंशूर पर आपने इमरान खान की हुकूमत को खत्म किया आपके जमात ने, पीडीएम की जमात ने, और अब जो है आप उसी मंशूर पर काम करने के बजाय अवाम में आ गए कि ये मसाइल है, इसके हल के लिए आप अभी सोच रहे हैं, तो जिस सोच के तहत आपने उनकी हुकूमत गिराई और खुद जो है बरसर इक़्तिदार आए, तो अब क्या हल है आपके पास? हमने मंशूर के तहत नहीं गिराई, आइन के तहत अदम एतमाद हुआ पाकिस्तान की तारीख का पहला। अभी भी 2 सूबाई हुकूमतें तहलील हुई हैं आइन के तहत। सर ये बताएं कि आज मरियम नवाज ने ये कहा कि उनकी पार्टी पहाड़ की तरह है, और जो इससे मतलब अलग होगा, गिरेगा तो पत्थर ही होगा, और साथ में उसने मिफ्ता इस्माइल साहब के बारे में बात करने से भी इनकार किया। आप इस बारे में क्या कहते हैं? मैंने बात सुनी नहीं है। देखिए हर राय सवाल आप करते हो, एक जवाब आ जाता है। आपने मुझसे सवाल किए, मैंने जवाब दे दिए हैं। सर ये बताइए कि आपका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है या सेमिनार था, इसका ये मकसद है कि आपने अपने पार्टियों का जो फोरम था वो आपने मुस्तरद कर दिया, और ये फोरम जो है ना ये मेरे भाई फिर आपको बात समझ नहीं आई ना। हमारी पार्टियों का पार्टी कैसे, मैं 35 साल से एक जमात के साथ हूँ, मैं आज भी उस जमात के साथ हूँ। मुल्क में एक सियासी निज़ाम है, उसके अंदर बहुत सी जमातें हैं, तमाम हुकूमत कर चुकी हैं,
मुल्क के अंदर जुडिशरी का असर है मुल्क की सियासत और मुल्क के मामलात पर, फ़ौज का असर है मुल्क की सियासत पर, मुल्क के मामलात पर, और इदारों का असर है। हम ये कह रहे हैं कि ये निज़ाम जिस तरह चल रहा है ये पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं कर सका और ना कर सकता है अगर इसको एहसास नहीं होगा कि हमने मिलकर मामलात को हल करना है। हम अपनी नाक से अगर आगे नहीं देखेंगे तो मुल्क जहाँ पर पहुँच चुका है उसकी तशवीश का किसी को एहसास नहीं है। आज हमें वो तशवीश नज़र नहीं आती, तो हम ये तशवीश उनके सामने रखना चाहते हैं कि आज सोचें कि हल क्या है। एक हुकूमत है, आज कोई हुकूमत भी अब ले आए, वो मईशत को क्या दुरुस्त कर सकती है, वो निज़ाम को दुरुस्त कर सकती है। इसलिए ये वो डिबेट है जिसको हम कोशिश कर रहे हैं कि अवाम के सामने ये डिबेट हो और जमातें इकट्ठी हों, इस्टेब्लिशमेंट साथ बैठे, जुडिशरी साथ बैठे और मुल्क की बात करें। इसके बारे में बता दीजिए कि अभी आपकी पार्टी के वज़ीर आज़म हैं, क्या आप इस फोरम को ले जाके अपने वज़ीर आज़म के साथ बिठाएंगे कि वो आपके जो मसाइल आप लोग आवाम के लिए जो बात कर रहे हैं आप वज़ीर आज़म के साथ बैठ के वो मसाइल का हल निकालें? जनाब, मुझे उम्मीद ये है कि वज़ीर आज़म साहब भी, दीगर जमातों के सरबराह भी, इस्टेब्लिशमेंट भी, जुडिशरी भी ये एहसास करेंगे। उन्होंने अभी तक तो खुद तो नहीं किया ना, तो हम ये कह रहे हैं कि भाई एहसास करें, आज मुल्क मुश्किल में है, लोग तकलीफ़ में हैं, आप अपनी सियासत नहीं खेल सकते, आप ये असम्बलियाँ तहलील नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपने मुफाद को नहीं देख सकते, आपको मुल्क के मुफाद को और अवाम के मुफाद को देखना पड़ेगा। आप दोनों से सवाल है, आप लोग अपनी पार्टी से आए हैं, आपकी पार्टी के अंदर क्या आप समझते हैं कि आपके कुछ हम ख्याल भी हैं जो यही चाहते हैं? देखिए, बहुत से लोग हैं इस वक्त पाकिस्तान में जो ये चाहते हैं कि ये गुफ्तगू हो, मसाइल के ऊपर गुफ्तगू हो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हाजी लश्करी साहब यहाँ पर बैठे हैं, हम बलूचिस्तान में हमने क्वेटा में हमने सेमिनार किया, कितने अरसे से हम इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि क्या मिसिंग पर्सनस के ऊपर कोई भी सियासी हुकूमत कोई हल निकाल सकी? सियासी हुकूमतों की लिमिटेशंस हैं, वो लिमिटेशन सियासी हुकूमतें जो हैं वो क्रॉस करने के लिए तैयार ही नहीं है, आमादा करने के लिए तैयार नहीं है कि खुदारा आइन के ऊपर अमल कीजिए। हमारी बच्चियाँ, हमारी बहनें, बच्चे इस्लामाबाद की सड़कों पर नंगे पैर वहाँ पर आकर एहतजाज करते रहते हैं, सियासी पार्टियों के पास उनको देने के लिए जवाब नहीं है। गवादर की मिसाल आपके सामने मौजूद है, अली वज़ीर की मिसाल आपके सामने मौजूद है कि जब से ये 1 साल हो चुका है हुकूमत आई है, क्या अली वज़ीर को कोई निकाल सके वहाँ से? मसलन मैं गुजारिश ये कर दूँ कि हमें अपनी जमातों से कोई नाराज़गी नहीं है, हम ये कोई नाराज़गी लेकर नहीं बैठे, हम बात मुल्क की कर रहे हैं, हम बात इस मुल्क के अवाम की कर रहे हैं, उन हालात की कर रहे हैं जो आज पैदा हुए हैं, और ये किसी एक जमात के बस की बात नहीं है। हम ये कह रहे हैं और जो भी इदारे हैं सब इसके जिम्मेदार हैं, सब इसमें हिस्सा डालें। सर, आपके साथ इस प्लेटफॉर्म के अंदर इस्माइल साहब भी शामिल हैं यहाँ पे। जी, इस्माइल साहब आज नहीं आ सके थे। जी, उन्होंने तकरीर फरमाई है। उन पे ये इल्जाम है कि उन्होंने वादा किया था कि वो कबाइल का जो हिस्सा है वो देंगे, और खैबर पख्तूनख्वा बाबा कहती रही है कि मिफ्ता इस्माइल साहब उस वादे से मुकर गए, और वही फाटा की इस वक्त जो हालात उसके जिम्मेदार हैं कि जब बजट 85 अरब चाहिए था उन्होंने 60 अरब दिया, तकरीर भी नहीं की, बाद में मुकर भी गए। तो आपके प्लेटफॉर्म में एक ऐसा शख्स जो कि वादा करके मुकर जाता है और आज आप उसी सूबे में आके उसी फाटा के अवाम के लिए बोल रहे हैं, तो सर ये फिर कौन सी सियासत? अगर वो मुकर गए तो उनको इस प्लेटफॉर्म से निकाल देंगे। फाटा की हकीकत बड़ी वाज़ेह है। 2018 की मई में ये आइनी तरमीम हुई थी, उसमें वसाइल के हवाले से कुछ फैसले हुए थे, उन वसाइल को 4 साल नहीं दिया गया, जबकि एक ही जमात की हुकूमत यहाँ भी थी और वफाक में भी थी। तो मिफ्ता इस्माइल साहब कहाँ से बीच में आ गए? अच्छा जी, शायद वो तो 4 महीने रहे हैं, तो इस 4 महीने का बोझ उन पे डाल दें, 4 साल का किसी और पे डाल दें। अच्छा, सारे मसाइल पर बात किया सिवाय